Good morning. In this lecture, we come to know regarding the kinetic energy. That kinetic energy and potential energy together known as mechanical energy. So, kinetic energy that is related with the energy related with the motion. Many examples are here regarding this kinetic energy. सिंपल वे में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे फ्लो ऑफ द विंड दैट रोटेट द टरबाइन हेयर, दैट फ्लो ऑफ द विंड दैट इज द काइनेटिक एनर्जी will rotate the turbine, and that rotation of the turbine that may create many activities. That means there is the kinetic energy, there is the velocity related with the wind blow. Likewise, in case of the waterfall from the dam, here also we observe there is the motion, and that motion strike the turbine, and that motion apply the force. That motion will move the turbine, and that is way we can understand the kinetic energy. That means हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बात सब क्लियर है कि जहाँ मोशन है, चाहे वो व्हीकल ही क्यों ना मूव कर रहा हो, दैट व्हीकल, मोशन ऑफ द व्हीकल ऑल्सो रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी, दैट द एनर्जी रिलेटेड विद द मोशन. And this all we have learned in the earlier classes also, in class junior classes also, that the kinetic energy is the energy possessed by a body by virtue of its motion. Now, what is the expression? The mathematical expression is related with the half mv square. So all this, ये सभी हम लोग अभी देखेंगे और समझेंगे. काइनेटिक एनर्जी का कई फॉर्म्स हमारे सामने हैं जो हम लोग देखते हैं. जैसे हमने कहा विंड का ब्लो या फॉलिंग ऑफ द वाटर में भी काइनेटिक एनर्जी, मोशन देख रहे हैं, मोशन ऑफ द व्हीकल में भी यहाँ पर भी देख रहे हैं. तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का. तो ऐसे में काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं, काइनेटिक का एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, और वर्क एनर्जी थ्योरम, ये तीन बात हम लोग अभी इस लेक्चर में पढ़ेंगे, जानेंगे. तो सबसे पहली बात कि दैट मैकेनिकल एनर्जी मीन्स हियर द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी टुगेदर नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल energy together known as mechanical energy. और इस मैकेनिकल एनर्जी का एक पार्ट हो गया मैकेनिकल एनर्जी को आपने दो पार्ट में देखा. एक हो गया kinetic energy and next one is the potential energy. That energy both related with the somehow motion, somehow position, somehow orientation. So these are the mechanical energy. Now first of all we will see the kinetic energy, then after we go to the potential energy. तो kinetic energy क्या कह रहे हैं? The energy due to the motion, energy possessed by the body by virtue of its motion, energy possessed by the body by virtue of its position, orientation, change in the shape, then it is termed as potential energy. And everything we will see later on. धीरे धीरे सारी बात जानेंगे. तो सबसे पहले अब हम लोग बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में. काइनेटिक एनर्जी को देखो, काइनेटिक एनर्जी that is the energy possessed by a body by virtue of its motion is known as kinetic energy. So here we will see the kinetic energy. Kinetic energy, energy possessed by a body by virtue of its motion, of
its motion is known as kinetic energy. Now देखो यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन क्या हो गया, मैथमेटिकल रिलेशन that is kinetic energy is equal to half mv square. अब ये रिलेशन आया कहाँ से, फॉर दैट वी विल सी द एक्सप्रेशन. अब इस बात को हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालें. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर अब एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी दैट इज द हाफ एम बी स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे. दो तरह से कंसिडर करेंगे, एक जनरल वे में और एक बाय द यूजिंग द कैलकुलस मेथड. जनरल वे दैट इज needed for the class 9 but calculus method is important for the class 11. तो अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. देखो सपोज करो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि दैट वन बॉडी इज प्लेस्ड हियर and it is at rest, means initially the body of mass m, mass कितना है, mass m, and initially it is at rest, means u is equal to 0. Now it start moving and it will move to the displacement of, suppose from a point to the b point, it reached to the b point, ये b point पे पहुंचा, and at that time it acquires certain velocity v. सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मोशन है, एंड मोशन दैट इज़ द वर्क यहाँ पर हो रहा है, दैट इज़ द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स भी है, यहाँ पर मूव किया, मान लो हमने यहाँ पर रखा हुआ था और इसको थ्रेड से खींच रहे हैं और ये पुली है, मान लो इसे मूव करा रहे हैं. ठीक है, खींच रहे हैं यहाँ पर जस्ट, तो ये मोशन यहाँ पर देखें. अब ये मोशन जो दिख रहा है ये काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देयर इज द वर्क डन. अब इसी बात को हम यहाँ लिख रहे हैं, द वर्क डन ऑन द बॉडी टू मूव फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन ऑन द बॉडी टू मूव इट फ्रॉम A point to B point, and it has the initial velocity is the 0. So on that case work from A to B is equal to how much it is, that is the force into the displacement is the S, and that is the dot product. और सिंपल वे में हम बात कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट है, वर्क को आप यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एंड थीटा हियर द फोर्स एक्टिंग एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो थीटा इज इक्वल टू 0, एंड वी कैन से दैट द कॉस ऑफ द 0 इज इक्वल टू 1. इसका मैंने कॉस ऑफ द 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ से यहाँ तक क्या ले लिए, 1 लिए. सो वर्क क्या हो गया, ए बी दैट इज इक्वल टू सिंपल वे में एफ इंटू एस. अगर हम 9 क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लो हमको ये नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं देख करके सीधा सीधी एफ एस भी लिख सकते हैं. अब यहाँ से हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मास आपने लिखा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द एम. सो ऐसे में क्या हो गया, और लिमिट है हमारे पास, क्या लिमिट है मोशन का, फ्रॉम 0 टू द फाइनल वेलोसिटी v, दैट इज द लिमिट. तो ऐसे में अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं m into a acceleration, and that is the s. This become the equation number 1. Now using the equation of motion here, using equation of motion, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो ऐसे में यहाँ देख रहे हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. इन दिस इक्वेशन वी आर नॉट कंसर्न विद द टाइम पीरियड. यहाँ पर भी हमने कहीं भी टाइम पीरियड का जिक्र नहीं किया है, इसलिए ये इक्वेशन में भी टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी है. तो
तो अगर हम यहाँ से कंसिडर करें और इसको हम दो पार्ट में देखेंगे, समझेंगे। कहने का मतलब अगर आप S निकालते हो और वैल्यू रखते हो तो भी आपके पास वर्क का वैल्यू या एनर्जी का वैल्यू हाफ mv² आएगा। अगर आप A निकाल करके भी रखोगे तो भी आपके पास वही रिलेशन आएगा। दोनों ही बात को हम करके देख रहे हैं। मान लो हमने यहाँ S लिया और S इज इक्वल टू, क्योंकि U का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं v² माइनस U इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर मीन्स 0 is equal to 2as. If you consider the s here, so on that case it is the v square by 2a. और अगर इसको मान लेते हैं और अगर आप चाहते हो कि a निकालें तो a इज इक्वल टू भी आप लिख सकते हो v स्क्वायर बाई 2s। तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप पुट कीजिए इन इक्वेशन नंबर 2 में से कोई भी आप इक्वेशन नंबर 1 में, और दोनों को अगर करके देखते हैं तो भी अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, हम इसको अलग अलग लिख देते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, एंड फॉर एवरी कंडीशन वी विल गेट द सेम रिलेशन। अब देखो ये बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं कि दैट वर्क A to B, और यहाँ लिख देते हैं सब्सटीट्यूटिंग द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 in इक्वेशन 1। दो पार्ट हम इसलिए किए हैं क्योंकि एक में रिलेशन अगर हम 2 रखेंगे तो दूसरा में आप 3 रखिएगा, और दोनों में ही सेम रिलेशन हमारे पास है। सो वर्क फ्रॉम A to B दैट इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ द m इट इज m, बट इन प्लेस ऑफ s A भी वही है, इनटू s के जगह हो गया v स्क्वायर बाई 2a। नाउ कैंसिल आउट a, तो वर्क क्या हो गया, A to AB इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। तो ये इक्वेशन नंबर 4 दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, और ये जनरल वे में हम लोग निकाले। और एक बात और ध्यान में रखें कि यहाँ पे हमने फोर्स को कांस्टेंट माना है, दैट अप्लाइड फोर्स इज द कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट बोलो या यूनिफॉर्म बोलो, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे फोर्स हमने कांस्टेंट माना है, ठीक है, इसलिए कहीं भी फोर्स को वैरी नहीं कर रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो, तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आप इससे रख करके कैलकुलेट किए। अगर हम इसमें बात करते हैं कि एक्सेलरेशन में बात कर रहे हैं अगर, तो इस चीज़ को आप देखो यहाँ पर अगर हम लिख दें सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखो यहाँ पर भी आप वही रिलेशन पा रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम A to B दैट इज इक्वल टू, अगेन हेयर अब यहाँ पर आ गया m इन प्लेस ऑफ द A के जगह पे आपने रख दिया v स्क्वायर बाई 2s into s, this s and s cancel, so again the work from AB is equal to kinetic energy and that is equal to half mv²। देखो यहाँ पर भी इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 बोथ आर द सेम। सब्स्टिट्यूट करने का तरीका है, दोनों ही इसी इक्वेशन से हमने कंसीडर किया और सिंपल वे में कैलकुलेट किए, ठीक है। ये तो था जनरल वे से आपने कंसीडर किया और यूनिफॉर्म को माने, बट इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं होता है कि फोर्स हमेशा कांस्टेंट है। ऐसे कंडीशन में हम कैलकुलस मेथड को कंसीडर करेंगे और तब फोर्स वेरी कर रहा है, यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, तो छोटा सा वर्क करेंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। अब ये जनरल देख लो, एक बार सभी लोग देख लो या आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विद द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड को यूज़ करते हुए। और इस बात को यहाँ पे देख रहे हैं वर्क डन। अब ये A और B नहीं लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी ध्यान में रखना है कि हमको फोर्स को कांस्टेंट बनाना है, और अभी हम कांस्टेंट नहीं मान रहे हैं, द फोर्स इज चेंजिंग फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ऐसे में बहुत छोटा सा हम पोजीशन लेंगे और उस पोजीशन में फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। और इस बात को यहाँ पर समझो, देखो अभी बात कर रहे हैं
ये मान लो यहाँ रिलेशन है हमारे पास और ए से बी मूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज द एस डिस्टेंस, इट इज द कंप्लीट, ठीक है। लेकिन फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अब यहाँ फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम सबसे पहला बात कि वर्क ही हम फॉर वेरी स्मॉल कंडीशन लेंगे। और वर्क को अब यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ पर हम एस नहीं लेकर के इसको सपोज करो कि हमने मान लिया कि दैट इज द एक्स एक्सिस, and the very small change of the position here, very small change in the position, that is the change in the position from this, and this change in the position is the dx along this x। और इस x को हम यहाँ से मान रहे हैं कि इस पोजीशन से x इज इक्वल टू 0 टू द x मैक्सिमम, यहाँ पर आपने x लिया, ठीक है, इन द x एक्सिस में। एंड दिस इज़ द ए और बी के जगह पे अब हम इसको P और Q ले रहे हैं। मान लो यहाँ से ये पोजीशन यहाँ से यहाँ तक आपने P पॉइंट लिया और इसी का इधर जो मूव किए यहाँ से यहाँ तक Q पॉइंट लिए, एंड दैट P एंड Q इज़ द dx, यही dx है, P एंड Q इज़ द dx। इट इज़ सच ए स्मॉल पॉइंट, it is such a very small displacement that force is remain to be constant। यहाँ पे हमने क्या माना कि फोर्स को कांस्टेंट माने। तो ऐसे में अब यहाँ देखेंगे कि वर्क डन फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज ऑफ पोजीशन, नाउ द वर्क, या वो लिख सकते हैं स्मॉल वर्क डन ऑन द बॉडी टू मूव, स्मॉल वर्क डन on the body to move from point P to Q, such that the displacement dx such that it has infinite small displacement, and that small displacement is the dx, and at that displacement the force is the constant। फोर्स को कांस्टेंट कंसिडर किए, क्योंकि अगर P और Q वन टू द नेक्स्ट पोजीशन है तो ऑलमोस्ट फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऐसे में वर्क डन आप निकाल रहे हो dw इज इक्वल टू, और लिमिट आपके पास वही है, दैट इज द वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 टू द वेलोसिटी ऑफ v। और पोजीशन में भी अगर आप लेते हैं फ्रॉम x टू द मीन्स x इज इक्वल टू 0 टू द x, तो वर्क ले रहे हैं दैट इज द फोर्स इनटू कितना पोजीशन आप चेंज किए, dx पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक जहाँ मोमेंट क्या है, dx है, P टू Q। अब ये फोर्स को आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस हम कह सकते हैं दैट सिंस F इज इक्वल टू m इंटू ए, और इसको अगर आप यहाँ बैठा दिए तो आ गया dw इज इक्वल टू m इंटू ए इंटू डी एक्स। नाउ a इज द एक्सेलरेशन को भी हम लिखते हैं एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया, इसको भी यहाँ a की जगह पे बैठा दिए। नाउ द वर्क dw इज इक्वल टू m इंटू, इन प्लेस ऑफ a वी विल राइट द dv बाई dt एंड इंटू dx। और इसी रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx बाई dt, जानते हैं हम लोग ऑल्सो dx बाई dt दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज द वेलोसिटी। सो हम इसको यहाँ पर dw इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया m, और यहाँ लिख दिए dx बाई dt फॉर द dv। अब ये कैलकुलस मेथड से अब यहाँ पर dx बाई dt के जगह पे अब हम इसको बैठा देंगे। नाउ इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना और इसको इक्वेशन 2 माने सपोज, ठीक है। तो या फिर आप यहाँ से भी लिख सकते हो, इक्वेशन 1 यहाँ हो गया, ये हो गया 2, और इधर हमने कंसीडर कर लिया 3, थर्ड इक्वेशन। तो ऐसे में सब्स्टिट्यूटिंग
इक्वेशन 3 इन इक्वेशन क्या है आपके पास 2, तो वी हैव कितना हो जाएगा, वी हैव यहाँ लिखेंगे dx बाई dt, या ऐसे नहीं, इसको आप वर्क के साथ देख रहे हैं ना, तो वर्क आ गया आपके पास dw इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ m तो m ही रहेगा, और dx बाई dt इज द वेलोसिटी टू दैट ऑफ द dv, और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन 4 विथ लिमिट, लिमिट क्या क्या है देखो, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4 विथ प्रॉपर लिमिट। अब प्रॉपर लिमिट क्या है हमारे पास, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, a से b तक हो रहा है, तो वर्क कहाँ से कहाँ तक है, dw, दैट इज द वर्क फ्रॉम a to b एंड दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो इधर अभी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ द m v dv फ्रॉम, अब v dv आप ले रहे हैं यहाँ पे v dv, अब यहाँ पर लिमिट आपके पास है वेलोसिटी का फ्रॉम 0 से लेकर के v तक, तो वी विल राइट हेयर द 0 टू दैट ऑफ द v, और इसको इंटीग्रेट करो, तो ऐसे में इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, देखो अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन फॉर दिस, देखिए विथ द लिमिट आपने ले लिया है यहाँ पे, और दिस इज द कैलकुलस मेथड, ठीक है। अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर दिए वर्क फ्रॉम a to b, दैट इज इक्वल टू m, मास को कांस्टेंट को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, वेलोसिटी का फ्रॉम 0 to u टू द dv, सो यहाँ पे मेरे पास रिलेशन आ गया वर्क फ्रॉम a to b, दैट इज इक्वल टू, हियर इट इज द m, और यहाँ आ गया v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to फाइनल वेलोसिटी, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज द 0, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अपर लिमिट और हाफ बाहर ले लिए, सो वर्क a to b दैट इज रिप्रेजेंटेड एज काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज द हाफ m v स्क्वायर, सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड, ये कैलकुलस मेथड से आपने एक्सप्रेशन निकाला हाफ m v स्क्वायर। दोनों ही मेथड देखिए आप, ध्यान रखना कि वहाँ हमने जब जनरल लिया था तो हमने कंसीडर किया था कि फोर्स यूनिफॉर्म है, फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए वहाँ कहीं किसी तरह की बात नहीं की, लेकिन जब हम यहाँ पर कैलकुलस में आते हैं तो अब फोर्स को कांस्टेंट बनाना है, फोर्स हर जगह वैरी कर रहा है, इट इज़ नॉट नीडेड कि वो हर जगह कांस्टेंट होगा, तो ऐसे में एक छोटा सा पार्ट लिए, इतना पार्ट छोटा है कि ऑलमोस्ट दोनों पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और देन आफ्टर वी विल कैलकुलेट, ठीक है, और सब छोटे छोटे पार्ट को जोड़ते चले गए तो इंटीग्रेट हो गया फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द 0 to the v, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालें। अब देखो ये तो हम जान रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी बाय द डेफिनेशन भी जाने कि यहाँ मोशन है और मोशन से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब वर्क के साथ रिलेशन है तो एक थ्योरम बनता है दैट इज कॉल्ड द वर्क। इससे यहाँ पर हम मोमेंटम के साथ भी रिलेशन ले सकते हैं। मोमेंटम क्या है काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो देखो अब इसी बात को हम यहाँ पर ले रहे हैं, रिलेशन विद द लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड द लीनियर मोमेंटम, ठीक है, रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद द लीनियर मोमेंटम एंड दैट इज द relation of kinetic energy with linear momentum। और ये तो तुरंत निकल गया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपने यहाँ लिखा है, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर है और मास आपके पास एक है, तो हम m से अगर मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन को इक्वेट रखने के लिए ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज द हाफ m स्क्वायर बाई m
इंटू वी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये मोमेंटम हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी दैट इक्वल टू कितना आ गया हाफ, और इसको आप क्या लिख सकते हैं m तो यहाँ आएगा ही, और ऊपर कितना आ गया तो mv दैट इज स्क्वायर, ठीक है। और हाफ mv इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज द मोमेंटम। सो वी विल राइट द काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि इट हैज ए वेलोसिटी u and it acquired the final velocity v after certain displacement, ठीक है। अगर कैलकुलस है तो पहले कैलकुलस से ही कर लो, बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड। अब कैलकुलस मेथड से देख रहे हैं तो वही सारा रिलेशन आपको लिखना है। फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द फोर्स रिमेन कांस्टेंट, फॉर या इन्फिनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर infinitesimally small displacement dx, the force is assumed to be constant or uniform. Then the work done, अब वर्क डन क्या हो गया यहाँ पे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू दैट फोर्स इंटू डी एक्स। जो रिलेशन है अभी हम उसी के हिसाब से तुरंत निकाल रहे हैं कैलकुलस मेथड, दैट इज द बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड को यूज करते हुए, ठीक है। तो ऐसे में अब यहाँ पर f इंटू डी एक्स लिए, और f के जगह पे हम क्या रख देंगे mv इंटू डी एक्स, जो अभी किए थे। एक वैल्यू भी रख दो, सो m इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। यहाँ पर लिखते जा रहे हैं कि यहाँ पर क्या आया, दैट इज द f इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ क्या आ गया, दैट इज द a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। दो पार्ट आपने देखा, इसके जगह पे यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया dx, इसको आप रीअरेंज किए, डी डब्ल्यू यहाँ भी, डी डब्ल्यू यहाँ भी, दैट इज और कर दिए, और इसी को हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये हो गया m डी एक्स बाई डी टी इंटू डी वी, और डी एक्स बाई डी टी इज अगेन, यहाँ भी एक रिलेशन है डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी है, तो डी एक्स बाई डी टी की जगह वेलोसिटी हो गया, तो डी डब्ल्यू कितना आ गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी डी वी। नाउ दिस इक्वेशन अर्लियर वन, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, सेम चीज विद द लिमिट्स, ठीक है। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 विथ प्रॉपर लिमिट, लिमिट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को आपने u माना है, और फाइनल वेलोसिटी दैट इज v, दिस आर द लिमिट। ये क्या है, लिमिट है। अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं किस को इंटीग्रेट कर दिया, वर्क डी डब्ल्यू दैट इज फ्रॉम ए टू बी। ये पोजीशन आपने लिखा हुआ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है। तो ऐसे में दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एम वी डी वी फ्रॉम यू टू बी। नाउ द डिफरेंस आ गया यहाँ पर, m को बाहर कर दिए, m इज द कांस्टेंट, तो वर्क फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू m बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन किसका हुआ, v का, dv का, फ्रॉम u से लेकर के v तक विद द डिफरेंशियल ऑफ v dv। और इस रिलेशन को अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, तो ये क्या आ गया यहाँ पे देखो, इन्फिनिटी, ये सब मेथड से अब कैलकुलेट करेंगे। तो रिलेशन इंटीग्रेट करने पे कितना हुआ, सो वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू,
अब यहाँ m है और इसके जगह हाफ कर दिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं m और ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम u टू v. Now upper limit minus lower limit. So work from A to B that is equal to half. M तो रहेगा m v स्क्वायर अपर लिमिट माइनस दिस, यहाँ पर क्या हो गया u स्क्वायर लोअर लिमिट, और इसी को आप लिखेंगे वर्क फ्रॉम A to B इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर. और ये क्या देखें कि दैट वर्क इज द डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. डिफरेंस क्या है हमारे पास, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एंड फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, दैट इज द डिफरेंस. तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्क फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. तो ये डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज द इक्विवेलेंट टू द वर्क डन. जो आपने वर्क किया वो क्या है एक्चुअली, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी है. और ये बात आप कैलकुलस मेथड से निकालें, इसको हम जनरल मेथड से भी निकाल सकते हैं और अभी निकाल के दिखा भी रहे हैं, जान रहे हैं हम लोग. कैलकुलस मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका प्रश्न हमेशा पूछा जाता है. देखो यहाँ पर सेम रिलेशन को हम जनरल मेथड से निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम फोर्स को यूनिफॉर्म मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है. तो ये रिलेशन है हमारे पास. देखिए काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए. अब यहाँ पर अब ये बात नहीं कर रहे कि यहाँ हमको पी पॉइंट्स और ये लेना है, ये टोटल डिस्टेंस आप यहाँ कंसीडर कर रहे हैं दैट हैविंग द कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है और तब यहाँ पे आप ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इज द एस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज द एफ, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है. और डिस्प्लेसमेंट भी हम कंसीडर कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है. और अलोंग द डायरेक्शन है, तो ये बात सब हमारे पास है. नाउ सिंपल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एट कांस्टेंट फोर्स F. So work is equal to फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अभी हमने कहा कि यहाँ डॉट प्रोडक्ट और कॉस रिलेशन तो हम पढ़ चुके, जान रहे हैं कि थीटा वैल्यू कितना है, दैट इज़ द 0 डिग्री, और थीटा 0 है, इसका मतलब यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि कॉस का वैल्यू 0 दैट इज़ द 1. तो रिलेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको एक लाइन में कंप्लीट कर लें, दैट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट एफ एस कॉस थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड द कॉस 0 इज इक्वल टू 1, सो इट इज़ द ओनली एफ एस. रिलेशन हमको लिखना है और इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी u इज द इनिशियल वेलोसिटी और v इज द फाइनल वेलोसिटी. तो ऐसे में अब ये लिमिट भी हो गया, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. सो वर्क इज इक्वल टू एफ के जगह हो गया m इंटू ए इंटू एस. नाउ वी यूज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन हेयर और a का वैल्यू निकालेंगे. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन. और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. सो a आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर या s कैलकुलेट करेंगे, दोनों में से कोई भी कैंसिल होगा, अभी हम लोग देखें. सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a दैट इज इक्वल टू s. और आप ऐसे भी लिख सकते और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s इज इक्वल टू a. कोई भी रिलेशन आप यहाँ पे बैठा सकते हो, आइदर इन प्लेस ऑफ a और इन प्लेस ऑफ s. तो कोई एक हम ले रहे हैं और इन दोनों को हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया. नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो ये रिलेशन कितना हो गया, वर्क इज इक्वल टू m इन प्लेस ऑफ a अगर रखते हैं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s
इंटू एस, ये एस और एस कैंसिल, तो वर्क फिर हमको मिल गया फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू हाफ, यहाँ है एम इसके साथ है, दोनों के साथ है प्रोडक्ट किया, एम यहाँ पर हम पूरे को ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ एस आपने हटाया है, तो हम इसको लिख सकते हैं एम भी हाफ एम भी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और ये फिर हमको मिल गया वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और इस तरह हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम बाय बोथ मेथड, जनरल वे से भी, बस ध्यान में यही रखना है कि हम लोगों के लिए फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ द 12th और 11th वी मस्ट कंसिडर द यूनिफॉर्म केस, और यूनिफॉर्म केस समझने के लिए ही आप कैलकुलस मेथड में भी dx का कंसिडरेशन किए थे ताकि वहाँ फोर्स को कांस्टेंट करे, यहाँ भी हमको फोर्स को कांस्टेंट देख रहे हैं, तो ऐसे में हम जनरल वे से वर्क रिलेशन को फाइंड आउट किए, वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाया। सो दीज आर द ऑल रिलेटेड विद द एनर्जी। एक और बात, एनर्जी का यूनिट सभी जगह जूल है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लेते, ऐसा यूनिट एब्सोल्यूट यूनिट, और यहाँ हम लोग क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं तो ऐसा यूनिट दैट इज द जूल।